It's my privilege to introduce Shri Mukul Kanitkar, who is the National Organizing Secretary of Bharatiya Shikshan Mandal. Sir had finished his LLB in 1990 from Dr. Babasaheb Ambedkar Law College, Nagpur, and ever since he has devoted his life to the service of nation. He has been life worker of Vivekanand Kendra, Kanyakumari from 1990 to 2012. It is then that he has taken over as National Organizing Secretary since 2016, and he has been associated with Bharatiya Shikshan Mandal since 2012. He has been Secretary Vivekananda International Foundation, New Delhi from 2008 to 2011. Sir is a multidimensional and a multi-talented personality. He has been a member of Madhya Pradesh State Yoga Parishad since 2007. He has developed training workshop modules for stress management, life management, and teachers orientation. Sir has conducted more than 2,500 workshops for more than 8 lakh participants. He is a visiting faculty at Management Department of Maharaja Shivaji Rao, Sayaji Rao, University Baroda, IIT Mumbai, and IIT Roorkee. He conducts courses on Gita and Management and Sustainable Finance. Sir has attended more than 28 international conferences and has organized 5 of them. He has delivered more than 10,000 lectures. Sir has authored books in 5 languages, namely Hindi, English, Marathi, Punjabi, and Gujarati. His book in Hindi, Pariksha De Haste Haste, has sold more than 1 million copies. Sir has written more than 2,150 articles in Hindi, English, and Marathi. He is pioneer of mass Surya Namaskar programs. First event he conducted in Jodhpur in 1995. He is also organizer of the Guinness World Record winning events in Gwalior in 2004. Sir has been instructor of Mass Surya Namaskar conducted for more than 10 million students in Madhya Pradesh every year on 12th of January since 2007. Sir is going to deliver his lecture on holistic fitness, physical, professional, social, and spiritual. May I invite you, sir, to the dais. Thank you. We'll start with a practical. कुछ प्रैक्टिस करेंगे. अभी अभी भोजन किया इसलिए कुछ एक्सरसाइज तो नहीं कराऊंगा. बैठे बैठे आंखें बंद कर दीजिए. सबसे कठिन काम करवाना. दूसरों को देखना सरल होता है, खुद को देखना कठिन होता है. देखिए, इसीलिए अभी तक कुछ लोगों की आंखें बंद नहीं हुई. ऊपर की पलकों को नीचे की पलकों पर रख दीजिए, बंद हो जाती है. वेरी गुड, फैंटास्टिक. Just concentrate on your breathing and just try to regulate your breathing without using your thumb. अपनी उंगली किए बिना, नाक को उंगली लगाए बिना. Let's try right nostril breathing. Surya Anulom Vilom Pranayam it is called. The right nostril breathing. Just breathe through the right nostril. Inhale deeply. जितनी गहरी श्वास भर सकते हो उतनी गहरी श्वास भरिए. Exhale slowly. Don't exert. No, right only. Right, exhale, inhale through right, exhale through right. Only right nostril breathing because it helps in digestion. अभी अभी भोजन करके बैठे इसलिए सूर्य अनुलोम विलोम कर. Right nostril breathing accelerates your digestion, helps in enzyme secretion and all that. पचन क्रिया को गति प्रदान करने के लिए सूर्य अनुलोम विलोम प्राणायाम का प्रयोग होता है. दाहिनी नासिका से ही श्वास को लेना, दाहिनी से ही श्वास को छोड़ना. After say 5-7 rounds, try to shift to the left nostril. Just through your mind regulate your breathing and try to breathe through left. Inhale through left and exhale through left. Only 1 or 2 inhalation, exhalation through left, and then we'll again go back to right. 3 inhalation and exhalation from right now. दाहिने से 3 बार श्वास लेकर के छोड़ने के बाद में then let us try Nadi Shuddhi Pranayam, which is also called as Anulom Vilom. Inhale through left, exhale through right, inhale through right and exhale through left. बाएं से श्वास को भरना, दाहिने से छोड़ना, दाहिने से भरना और बाएं से छोड़ना.
This is one round. 2 exhalation, inhalation is 1 round. And let us do 3 rounds. Inhale through left, exhale through right. Inhale through right and exhale through left. बाएं से भरिए, दाहिने से छोड़िए, दाहिने से भरिए, बाएं से छोड़िए. And after you complete your 3 rounds with your own speed, आप अपनी गति से कीजिए. 3 आवर्तन पूरा होने के बाद धीरे से आंखों को खोलिए. As slowly as you can. Feel the light entering your eyeballs. आंखों में प्रकाश के प्रवेश को अनुभव करते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलिए. Palming कर सकते हैं. Palming कर सकते हैं. It is very helpful after opening the eyes if you do palming. Use this part of the palm, not the fingers. हल्के से रखिए. Do not rub, do not push. मलिए मत, दबाइए मत. केवल हल्के से स्पर्श कीजिए आँखों का और हाथों को नीचे छोड़िए. ये वे आँखों को खोलिए. ये प्राणायाम है. नाक पकड़ते हैं तो श्वासायाम होता है. जब आप ऐसे पकड़ करके करते हैं तब इट इज मोर ऑफ ए ब्रीदिंग एक्सरसाइज देन प्राणिक एक्सरसाइज. प्राण जो है वह शरीर और मन को जोड़ने का काम करता है. सो व्हेन यू आर यूजिंग योर माइंड टू कंट्रोल योर बॉडी, ब्रीदिंग इन दिस केस, देन यू हैव टू यूज प्राणा. जैसे पतंग उड़ाते समय पतंग को मोड़ना है तो धागे का प्रयोग करना पड़ता है. पतंग तो आपके हाथ में नहीं, वो तो ऊंचे आकाश में है, लेकिन रस्सी आपके हाथ में. आप रस्सी को एक उंगली ऐसी करते और पतंग मुड़ती है. वैसे ही शरीर और मन का जो संबंध है वो प्राण से है. प्राण उसका धागा है. सो प्राणायाम इज बेसिकली आइडेंटिफाइंग, recognizing that flow of prana in our body and beyond also, because it is subtler than body. It is subtler than the physical self. शरीर से अधिक सूक्ष्म होने के कारण वो शरीर से बाहर भी जाता है, जिसको हम नॉर्मली ऑरा कहते हैं. उसका ऑरा बहुत अच्छा है कहते हैं. किसी दिन अपने को खुद को ही लगता है चमक रहा है, हम दोस्त को कहते हैं अरे आज बहुत चमक रहा है. दैट इज बेसिकली द व्यान प्राण ग्लोइंग आउट ऑफ योर स्किन. जो पंच प्राणों में से व्यान प्राण है वो आपके बॉडी में से बाहर जाता है. हमने भारतीय शिक्षण मंडल में उसके लिए प्राण विद्या परिचय वर्ग करके एक मॉड्यूल विकसित किया है. क्योंकि अनलेस यू अंडरस्टैंड दिस बेसिक साइंस ऑफ प्राण, जिसको होम्योपैथी वाले वाइटल एनर्जी कहते हैं, होम्योपैथी पूरा का पूरा इस प्राण पर निर्धारित है. इसलिए होम्योपैथी में आप देखेंगे कि 10x मिलियन तक जाता है. 2m वगैरह की उनकी पोटेंसी वाले दवाइयाँ देते हैं. और मज़ेदार बात ऐसी है कि जितनी उनकी पोटेंसी बढ़ती है उतना उसमें फिजिकल जो एक्सट्रैक्ट है वो कम हो जाता है. जैसे मान लीजिए बेलाडोना आप ले रहे हैं, 2x ले रहे हैं, तो उसका मतलब है कि 10 बूंद अल्कोहल में 1 बूंद बेलाडोना का अर्क उन्होंने डाला तो दैट इज 1x. अब वो जो डाइल्यूटेड है उसमें से 1 बूंद लेकर के जब 9 बूंद अल्कोहल के साथ मिलाएंगे दैट इज 2x. तो 2 मिलियन में क्या बचा बेलाडोना? आप सोचिए, सारा अल्कोहल ही है. लेकिन उसके बावजूद द 2 मिलियन पोटेंसी इज मोर इफेक्टिव दैन द 2x पोटेंसी. व्हाई? Because as the physical content of the extract goes down, the vital goes up. That's what the homeopath said. वो vital वो प्राण शक्ति है. इसलिए हमारा पूरा जो आचार व्यवहार और भारत में जो कुछ भी परंपराएं हैं, they are all basically based on the प्राण विद्या, प्राण विज्ञान, प्राण का जो शास्त्र है. But somehow in last almost 150 years we lost it. कुछ 90 साल पुरानी 2 मैन्युस्क्रिप्ट मुझे मिली है जिसको वी आर ट्राइंग टू रिप्रोड्यूस. प्राण विद्या इसी नाम से है. उसको फिर से छापने का हम प्रयास कर रहे हैं. 95 years ago somebody wrote, अपने सातवलेकर जी महाराज ने लिखा है उसके ऊपर बहुत सुंदर प्राण विद्या करके, पूरे ग्रंथों में से रेफरेंसेस दे करके. अदरवाइज इट वॉज लॉस्ट. तो इसलिए मैंने आज आपको, और आई डेंट इनिशिएट, कुछ किया नहीं, लेकिन आपने तुरंत, आपको मोस्ट ऑफ यू, एक हाथ को नहीं हुआ होगा अलग बात है, मोस्ट ऑफ यू कुड कंट्रोल योर ब्रीदिंग. मैंने पूछा भी नहीं आपको, बट आई कैन वेरी इजीली एज्यूम, क्योंकि मुझे पता है मैंने लाखों लोगों को करवाया और सबका होता है. बिकॉज योर माइंड कंट्रोल्स योर बॉडी. दैट इज वाई
दिस फिटनेस का जो विषय हमने लिया, वेल बीइंग का जो विषय हमने लिया, तो उस विषय में आप अभी आयु के जिस कगार पर है, दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट, स्लोली इट बिकम्स मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट। आप में से कुछ लोग, मतलब वैसे तो आप सभी वीआईपी हो ही, पर मतलब मेडिकली भी वीआईपी आप में से कई लोग बन गए होंगे। शुगर नहीं चलती, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर हो ही गया होगा, उनको मैं मेडिकल वीआईपी करता हूँ। तो ये आपके लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, इस सब का परिणाम है जो इनएविटेबल है। तो इसलिए जब आप ये मिड करियर ट्रेनिंग में यहाँ पर है, तो ये भी बहुत आवश्यक है। हाउ टू मैनेज योर सेल्फ। इफ यू आर नॉट एबल टू मैनेज योर ओन सेल्फ, हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज द गवर्नमेंट एंड मैनेज द अदर्स। सो दैट्स व्हाई आई थॉट दिस इज, लोकरंजन जी ने जब मुझे कहा कि आप आइए, बेसिकली अभी तो मेरा काम ज़्यादा एजुकेशन पे चलता है, ये मेरा बेसिक विषय वर्तमान में नहीं है। वी आर एट प्रेजेंट वर्किंग ऑन एजुकेशन पॉलिसी। अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, उसमें बहुत बड़ा काम हमने पिछले 15-20 वर्षों से हम उस पर काम कर रहे हैं। इवन 1986 की पॉलिसी में भी भारतीय शिक्षण मंडल के इनपुट थे। तो अभी हमारा काम बेसिकली एजुकेशन में है, एट ऑल लेवल, स्कूल एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन एंड इवन द इनफॉर्मल एजुकेशन। गुरुकुलों को भी हमने एकत्रित करने का प्रयास किया, और इस देश में अभी भी 10,000 गुरुकुल चलते हैं जिनको हम संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं। एंड वी ऑलरेडी हैव कनेक्टेड मोर देन 4,000 गुरुकुल, और उनको भी युगानुकूल करना, आज के युग के लिए उपयोगी ढंग से उनके भी सिलेबस और कंटेंट को चेंज करना, ये भी एक गुरुकुल प्रकल्प भी चलता है। तो आज मेरा वर्तमान में पिछले राइट फ्रॉम 2012 लास्ट 9 years आई एम वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन मोर। और आप लोगों से बात करते समय मैंने कहा एजुकेशन पॉलिसी पे आपसे चर्चा करने का कोई उतना औचित्य बनता नहीं, आप सब लोगों ने देखा ही होगा। तो मुझे लगा आपके जीवन से जो जुड़ा हुआ विषय है वो लिया जाए, एंड दैट्स व्हाई आई सिलेक्टेड दिस टॉपिक। बट एज यू कैन सी, आई हैव क्वालिफाइड इट विथ एन ऑब्जेक्टिव व्हिच सेड फिटनेस हैज टू बी लुक्ड इनटू फ्रॉम ए होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। समग्रता से इस विषय को देखने की आवश्यकता है, और इसीलिए मैंने जो इन्वोकेशन जहाँ से हम प्रारंभ करेंगे वो चुना। वो इन्वोकेशन भी ऐसा है कि हम में से सभी के ऊपर लागू होता है। आपका जाति, पंथ, संप्रदाय कौन सा है, किस ईश्वर को आप मानते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमसे बड़ों के प्रति तो सम्मान सभी मान्यताओं में होता है। और बड़ा हम किसे मानते हैं? गुरु शब्द का अर्थ नॉर्मली गाइड लेते हैं, इसलिए मैंने स्लैश करके गाइड भी लिख दिया वहाँ पर। लेकिन गुरु शब्द का जो टेक्निकल संस्कृत में अर्थ है वो है बड़ा। गुरु का विलोम होता है लघु। लघु और गुरु, साहित्य का अध्ययन किया होगा तो उनको मात्राओं में पता होगा, ह्रस्व और दीर्घ मात्राओं को लघु गुरु कहते हैं, या संगीत का भी अभ्यास करने वालों को पता होगा लघु गुरु होता है। और वैसे ही हमारी ग्रहमाला का जुपिटर जो ग्रह है सबसे बड़ा, बृहस्पति, उसको सदियों से भारतीय खगोलविद गुरु कहते रहे। उस समय उनको कैसे पता था कि उसका मास सबसे ज़्यादा है, वी डोंट नो। किस प्रकार की वेधशालाएं, जंतर मंतर जैसी उनके पास थी, जिससे दे कुड असर्टेन दैट हमारी ग्रहमाला में सर्वाधिक बड़ा ग्रह बृहस्पति है, इसलिए उसको गुरु भी कहा जाता है। तो गुरु इज बिग। तो बड़ा कौन है? तो बड़ा वह है जो मुझे ये दर्शन करा दे, जो मुझे ये रियलाइज करा दे कि जो सर्वव्यापी है वो एक है। मैनिफेस्टेशन में भी मैनी, पर उसके अंतर्निहित जो है, फ्रिट्जॉफ कापरा ने पुस्तक लिखी है वेब ऑफ लाइफ। फ्रिट्जॉफ कापरा जिसने ताओ ऑफ फिजिक्स लिखी थी, उसकी 1998 में जो पुस्तक आई उसका नाम था वेब ऑफ लाइफ। उस वेब ऑफ लाइफ का प्रारंभ वो यहाँ से करता है कि मान लीजिए आप किसी एक घने जंगल में जा रहे हैं। He starts with this kind of an imagination. Ask the reader to do the imagination. कि आप किसी घने जंगल में जा रहे हैं, चारों तरफ विभिन्न प्रकार के वृक्ष हैं। बायोडाइवर्सिटी शब्द तब इतना प्रचलित भी नहीं हुआ था, तब वो बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहा है कि कितने प्रकार के वृक्ष, छोटे छोटे पादप से लेकर बड़े बड़े गगनचुंबी वृक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं, और अलग अलग प्रकार की रंगों की छटा है, अलग अलग प्रकार के पुष्प उन पर खिले हैं, फल है। So much of diversity you can see in the jungle. आप घूमेंगे तो फिर वो फ्रिट्जॉफ कापरा आपको कहता है, just imagine you are 20 feet below the earth and looking at that forest from within. आप जमीन के 20 फीट नीचे से उस जंगल को देख रहे हैं तो क्या दिखेगा? And then he says you will see roots and roots and roots everywhere. Different kinds of roots, but all roots twinkled each other. एक दूसरे में गूथे हुए, ताना बाना गूथा हुआ है, ऐसी जड़ें ही जड़ें दिखेंगी। ऊपर की सारी डाइवर्सिटी के नीचे एक ही जड़ है
जो एक ही जीवन रस को प्राप्त करके अपने आप को डाइवर्स फॉर्म में और प्रदर्शित कर रहा है, ये जो अनुभूति कराता है उसको गुरु कहते हैं। इसलिए उस प्रार्थना से प्रारंभ करेंगे। जिनको आती है वो मेरे साथ बोले, जिनको नहीं आती वो शांति से सुनेंगे तो भी चलेगा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अपने मन ही मन आप अपने अपने गुरु का स्मरण कीजिए, जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा है, पाया है। और उससे हम इस बात को प्रारंभ करते हैं। आज की चर्चा को वैसे प्रारंभ कर ही दिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ एट प्रेजेंट वेरी नटोरियस ऑल्सो, फेमस तो है ही, लेकिन पैंडमिक के बीच में बहुत सारी बातों के लिए नटोरिटी भी आ गई उसको। कई बार 1948 में पहली डेफिनेशन WHO ने की थी, एंड दे अमेंडेड द डेफिनेशन सो मेनी टाइम्स। सोशल इज द रिसेंट एडिशन, दैट इज ऑल्सो इन द 90s दे एडेड सोशल वेलबींग। तो स्वास्थ्य की परिभाषा WHO डिजीज फ्री बीइंग को नहीं स्वास्थ्य कह रहा है। वेलबींग इज नॉट हैविंग एनी डिजीज। आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप स्वस्थ है, ये परिभाषा नहीं है। दैट इज जनरल एजम्पशन जो हम सबके मन में होता है कि मैं स्वस्थ हूँ, मतलब मुझे कोई बीमारी नहीं है तो मैं स्वस्थ हूँ। दैट्स नॉट द डेफिनेशन व्हाट WHO थिंक्स। सो व्हेन WHO इज टॉकिंग अबाउट हेल्थ, it is talking about this complete scenario of health: physical well-being, mental well-being and social well-being. अब इसमें इमोशनल और स्पिरिचुअल भी ऐड हो गए। इन द मेडिकल साइंस WHO में अभी नहीं आए, आ जाएंगे कुछ दिनों बाद। बट द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ वेलबींग एंड द इमोशनल एस्पेक्ट, मेंटल से भी अलग इमोशनल एस्पेक्ट भी। मेंटल इज ओनली रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन, स्ट्रेस, फोकसिंग, डीफोकसिंग, दैट इज द मेंटल फैकल्टीज which help us to perceive and correlate। पर उससे भी अलग एक संबंध बनाने वाला, आत्मीयता बढ़ाने वाला ऐसा एक इमोशनल फैक्टर है, जिसके ऊपर आजकल बहुत काम करता है हो रहा है। और इमोशनल इंटेलिजेंस की बात आजकल बहुत ज़्यादा बड़े प्रमाण पे चल रही है। बट दिस इज हाउ होलिस्टिकली वेलबींग इज डिफाइंड, हेल्थ इज डिफाइंड। हमारी परिभाषा तो और भी मज़ेदार है। हम स्वास्थ्य शब्द को ही यदि देखते हैं, मैं स्वामी विवेकानंद का अध्ययन कर रहा था लॉ कॉलेज में पढ़ते समय, और एक उनका वाक्य अंग्रेजी में पढ़ रहा था मैं। लंदन में दिए गए एक भाषण में उनके एक वाक्य ने मेरे को, इट पजल्ड मी अ लॉट। मेरे को समझ में नहीं आया स्वामी जी कहे क्या रहे। स्वामी जी वेस्ट में बोलते समय 50 बार, 79 टू बी प्रिसाइज, 79 टाइम्स स्वामी जी हैज यूज्ड दिस फ्रेज। जब वहाँ अमेरिका या यूरोप में बोल रहे हैं तब वो कहते हैं, यू वेस्टर्नर्स विल नेवर अंडरस्टैंड दिस। ये शब्द उन्होंने 79 टाइम्स इस्तेमाल किया है। और ऐसा बोलते समय एक बार उन्होंने कहा कि हम भारतीय लोग ऐसे हैं, उन्होंने अंग्रेजी में कहा था, हम भारतीय लोग ऐसे, व्हेन वी ग्रीट ईच अदर, जब हम एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, मिलने के बाद राम राम करते हैं, नमस्ते करते हैं, व्हेन वी ग्रीट ईच अदर, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आस्क इज, आर यू अपॉन यूर सेल्फ। अंग्रेजी में स्वामी विवेकानंद ने ये शब्द, ये ट्रांसलेशन किया। अब मैं ढूंढ रहा था, आर यू अपॉन यूर सेल्फ, क्या आप अपने आप में हैं। मैंने कहा ऐसा तो हम हिंदी में राम राम बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं। नमस्ते मीन्स नमहते, आई बो टू यू। नमस्कार भी, उसका भी अर्थ ये है तुम्हारे अंदर की शक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। कहीं पर भी तुम अपने आप में हो क्या, ये प्रश्न तो हम पूछते नहीं। तो मैं सोचा बांग्ला में ऐसा कुछ होगा, तो मैंने अपने बंगाली मित्रों से पूछा कि बांग्ला में ऐसा कुछ है क्या ग्रीटिंग। बोले नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो भी पूछते भाल ठीक ठाक है, यही पूछते बंगाली लोग भी। तो मैंने कहा ये क्या बात हुई। तो फिर साइकिल से मैं कॉलेज जाता था, तो साइकिल चलाते समय ट्यूबलाइट जली एक दिन अचानक। लगभग 36 घंटे उस पजल में मैं था। ये स्वामी जी तो झूठ तो बोलेंगे नहीं, स्वामी जी ने कहा है तो होना चाहिए। और अचानक एक दिन साइकिल चलाते समय कोई पुराना दोस्त अपनी लूना पे मेरे को ओवरटेक करते समय उसने राम राम करी, और उसने प्रश्न पूछा मेरे को मराठी में, और उसने मराठी में मेरे को पूछा, क्या तबीयत ठीक ठाक। तो उसने जैसे वो तबीयत ठीक ठाक पूछा, तब मेरे को लगा अरे ये तो बिल्कुल ठीक है। हम मिलते ही सबसे पहले पूछताछ स्वास्थ्य की करते हैं। हम किसी से मिलते हैं तो किसी भी भाषा में मिलेंगे तो मिलने के बाद पहला प्रश्न यही पूछेंगे कि आपका स्वास्थ्य तो ठीक है।
और तब मेरे को ट्यूबलाइट जली। स्वास्थ्य शब्द का संस्कृत में अर्थ है जो स्व में स्थित है वो स्वस्थ है। जो स्व में स्थित है, आर यू अपॉन योर सेल्फ। तो व्हेन आई एम आस्किंग क्या आप स्वस्थ है, आई एम आस्किंग यू आर यू अपॉन योर सेल्फ। क्या आप स्व में स्थित है? आपका केंद्र आपके ही अंदर है या कहीं और भटक रहा है? अभी यहाँ इसी कक्ष में बैठे हैं या कहीं और पहुंच गए? दैट इज द क्वेश्चन विच मीन्स। तो स्वस्थ की ये डेफिनेशन हमारी, तो इट गोज वन स्टेप बियॉन्ड व्हाट WHO इज सेइंग। और ऐसा क्यों है? वाई वी आर टॉकिंग अबाउट फिटनेस एट दैट लेवल? जब पिछले साल फिट इंडिया के एनिवर्सरी पे कुछ लोगों से प्रधानमंत्री जी ने वार्तालाप किया था, तब PMO से ये विषय आया था कि बियॉन्ड फिजिकल फिटनेस बात करना चाहते हैं। इसलिए कुछ खिलाड़ियों से बात की थी, किसी दिव्यांग से बात की थी, आहार शास्त्री रचिता दिवेकर से बात की थी, मिलिंद सोमन से बात की थी, विराट कोहली भी थे। उन 6 लोगों में एक मैं था। तो वो इसी बात के लिए कहा था। उन्होंने कहा था, PMO ने कहा था कि वी वांट टू गो बियॉन्ड जस्ट फिजिकल एंड मेंटल। तो सामाजिक और राष्ट्रीय विचार भी कैसे वेलबींग का पार्ट है, फिटनेस का पार्ट है, उस बात के लिए मेरे साथ वो प्रश्नोत्तरी हुई थी। तो ये जो विषय भारत में स्वस्थ का, ये ऐसा जो समग्र विचार सदियों से चला है, इसलिए आप आयुर्वेद को पढ़ेंगे तो आयुर्वेद कहता है पहली व्याधि क्या है? तो आयुर्वेद कहता है संसार पहली व्याधि है। दैट यू आर बोर्न इज इटसेल्फ अ व्याधि एंड यू हैव टू गो बियॉन्ड दैट एंड कम कंट्रोल योर ओन नेचर। स्वामी विवेकानंद ने उसके लिए शब्द प्रयोग किया, प्रकृति का नियमन करना पड़ेगा। अंतर बाह्य प्रकृति का नियमन, यही मनुष्य के जीवन का ध्येय है। दैट्स व्हाट स्वामी विवेकानंद से। और ये ऐसा क्यों है? तो उसके बारे में जब सोचते समय उसको बहुत सुंदर तरीके से पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय जीवन दृष्टि को, उनका जो एकात्म मानव दर्शन है, उस एकात्म मानव दर्शन में कुछ मॉडल्स उन्होंने दिए हैं टू अंडरस्टैंड द इंट्रिकेसीज ऑफ दर्शन। जो हमारे न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन की इंट्रिकेसी को समझने के लिए एक सिंपल मॉडल दिया, अखंड मंडल। अभी जो अपन ने प्रार्थना बोली, तो वो अखंड मंडल, व्हाट इज दैट कंसेप्ट ऑफ अखंड मंडल? दिस स्पाइरल इज a circle which never ends. So the movement is circular, but it is unending. It is infinite. So Akhand Mandal represents that infinite being that we all are. और इसलिए मैंने फिर उसमें सामान्य रेखा का मंडल बनाने की जगह ये वारली पेंटिंग लिया, जो मध्य प्रदेश और अपने महाराष्ट्र के बॉर्डर पे वो एक जनजाति है वारली नाम की। वो वारली जनजाति की पेंटिंग आपने बहुत जगह पर देखे होंगे। ह्यूमन फिगरेट्स को प्रयोग करके वो सब बनाते हैं, घर भी बनाते हैं, बैलगाड़ी बनाते हैं। दे यूज दिस, इसमें दोनों है, मेल फीमेल दोनों ह्यूमन फिगरेट्स है, एंड दैट फॉर्म्स द होल अखंड मंडल। इसलिए मुझे लगा इस बात को, जीवन दृष्टि को समझने के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मॉडल विच पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैज गिवन इन हिज एकात्म मानव दर्शन, इंटीग्रेटेड ह्यूमन दर्शन फिलॉसफी। ये क्या है? ये कहता है कि हम अपने आप में अकेले है ही नहीं, इंडिविजुअल। इसलिए आपने देखा होगा नंबरिंग में इंडिविजुअल को 0 दिया है, बिकॉज यू कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट रिलेटिंग योरसेल्फ, विदाउट एक्सपांडिंग यू कैनॉट एग्जिस्ट, नोबडी कैन एग्जिस्ट। अकेले रहने के लिए बहुत बड़ी साधना करनी पड़ती है। ऋषि रह सकते हैं अकेले, वो गुफा में बैठते हैं और घंटों किसी से बातचीत बिना किए रह सकते हैं। आप मौन रहने की कोशिश कीजिए, आपको पता चलेगा ये सो डिफिकल्ट इट इज। 10-15 मिनट के लिए शांत रह करके देखिए कितना कठिन होता है। इसलिए मैंने प्रारंभ में आंखें बंद करते समय कहा था ये सबसे कठिन है। दैट इज व्हाट एरिस्टोटल सेड, दैट इज व्हाट द वेस्ट हैज बीन टॉकिंग अबाउट, दैट मैन इज अ सोशल एनिमल। प्राणी में और मनुष्य में भेद जो पश्चिम बताता है वो ये है कि वी सोशलाइज, हम संबंध बनाते हैं, और वो संबंध का प्रारंभ परिवार से होता है। परिवार में वी सी आवर ओन रिफ्लेक्शन। हम अपने आप को प्रतिबिंबित देखते हैं अपने बच्चे में, अपने पिता में, अपने माँ में, अपने पत्नी में, सब जगह पर हम अपने आप को ही देखते हैं। सो दैट इज माई इंडिविजुअलिटी एक्सपांडिंग इनटू फैमिली। Family is not different from me. I become family. That's why when my fitness will totally depend on my family's fitness. अभी पैंडेमिक के समय, कोविड-19 के समय, खास करके सेकंड वेव में
जब कोई परिवार का सदस्य बीमार था, परिवार का सदस्य तो छोड़ दीजिए, कोई आपका मित्र, कोई आपका परिचित और आपको फोन करके कहता था कि एक बेड चाहिए, एक ऑक्सीजन वाला बेड चाहिए, एंड यू फेल्ट हेल्पलेस, वो सबसे ऊपर तक संपर्क होने के बाद भी आपके पास में था ही नहीं, बेड उपलब्ध ही नहीं थे, उस समय जब आप उसको मदद नहीं कर पाते थे, तब आपको अंदर से जो अपनी पीड़ा का अनुभव होता था, नॉट हिज, उसकी वेदना आपको समझ में आया नहीं आया, लेकिन आपको जो वेदना होती थी, दैट इज द एक्सपांशन दिस अखंड मंडल रिप्रेजेंट्स, दैट इज द इमोशनल एक्सपांशन, दैट इज द स्पिरिचुअल एक्सपांशन, जिसके कारण स्वामी विवेकानंद वहां शिकागो में खड़े होकर के सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कह सकते हैं, बिकॉज ही फेल्ट दैट वननेस। मेरी लुइस बर्ग ने उसके ऊपर रिसर्च किया, and she came out with 6 volumes called as New Discoveries, Swami Vivekananda in the West, New Discoveries, रामकृष्ण मिशन का पब्लिकेशन है, 6 volumes, each volume of almost 1000 pages। और वो उन्होंने वो शिकागो की धर्मसभा में बैठे हुए सारे सामने बैठे हुए 3500 लोगों को ढूंढा, उनके घरों में गई और जाकर के शी took their own opinion, और वो नहीं थे तो उनके जो वंशज थे उनसे उनकी डायरी पढ़ी, and she has given 180 pages on that one lecture। वो 2 मिनट का लेक्चर था, 470 शब्द है केवल उस लेक्चर में, जिससे स्वामी विवेकानंद फेमस हो गए वर्ल्ड में। सिस्टर्स एंड माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, जिन 5 शब्दों पे तालियां बजी। और मेरी लुई बर्ग ने वो रिसर्च जो किया है उसमें उन्होंने लिखा है, शी हैज रिटन इन 180 पेजेस डिफरेंट केसेस, कि जिनसे भी मिली उसने कहा मुझे लगा मेरा भाई बोल रहा है, किसी ने कहा मुझे मेरा खोया हुआ भाई मिल गया, किसी ने कहा आई फेल्ट गूज़बम्प्स, मेरे शरीर में विद्युत तरंग दौड़ गई उनके उन 5 शब्दों को सुनकर, बिकॉज दोज वेर नॉट मियर वर्ड्स एंड ही वॉज नॉट द फर्स्ट पर्सन टू से दैट, ही वॉज द 4th पर्सन टू से दैट। उनसे पहले 3 लोगों ने सेम, सिस्टर्स, स्वामी जी ने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स बोला था, सिस्टर्स पहले बोला था, बाकी किसी ने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बोला होगा, पर एक जापान से आए हुए बौद्ध भिक्खु ने यही शब्द प्रयोग किया था। धम्मपाल अंगीकारा श्रीलंका से गए थे, उन्होंने भी यही शब्द प्रयोग किया था, और प्रताप चंद मुजुमदार उस सर्वपंथ सभा में थे जो थियोसॉफिकल सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने भी यही एड्रेस इस्तेमाल किया था, जो हमने बचपन में स्कूल में पढ़ा कि स्वामी विवेकानंद पहले थे जिन्होंने ये कहा, बाकी सब लेडीज एंड जेंटलमैन कह रहे थे, ये ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कह दिया तो तालियां बजी। दैट्स नॉट ट्रू, पहले 3 लोगों पे तालियां नहीं बजी थी, स्वामी विवेकानंद के तालियां बजी। वाई? तो भगिनी निवेदिता लिखती है, जो स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी, मार्गारेट नोबल, जो आगे चल करके जिसको निवेदिता नाम दिया स्वामी विवेकानंद ने, वो लिखती है, बिकॉज व्हाट ही सेड वाज फ्रॉम हिज कोर, उनके अंदर से वो बात आई थी, वो वहाँ पर है, जो 5 नंबर पे या 6 नंबर पे जो परमेष्टि तक पहुँचने वाली बात है, वहाँ पर वो बात है, मानवता के साथ एकाकार बंधुत्व का भाव। हम अपने सगे भाई और बहन के साथ जो अनुभव करते थे, वो स्वामी विवेकानंद वहां बैठे हुए सब लोगों के साथ अनुभव कर पाते थे। सो वंस वी अंडरस्टैंड दीज सर्कल्स ऑफ बीइंग, then we understand why WHO has to define health not only at the physical level, because at mental and emotional level you need to expand, you need to relate। आप अपने कार्य क्षेत्र में काम करते समय आप जितने लोगों के साथ उस एकत्व की, उस आत्मीयता की अनुभूति कर सकेंगे, उतनों का आप भला कर सकेंगे। आजकल स्टेक होल्डर शब्द बहुत प्रयोग होता है पॉलिसी मेकिंग में, हम भारतीय शिक्षण मंडल में स्टेक होल्डर शब्द प्रयोग नहीं करते। हम कहते हैं स्टेक होल्डर, मतलब शब्दों का भी अपना इतिहास होता है, शब्दों की भी अपनी जड़ें होती है। स्टेक होल्डर तो गैम्बलिंग से आया ना, तो हम एजुकेशन के स्टेक होल्डर्स कह के क्या कहना चाह रहे हैं, जिनका स्टेक है, मतलब जिन्होंने स्टेक लगाया है उसमें। सो द बेटर वर्ड इज पार्टनर्स, पर उससे भी एक शब्द आपके पॉलिसीज में आप हमेशा प्रयोग करते हैं, बेनिफिशियरीज। आपके जो हितग्राही है, आपके जो बेनिफिशियरीज हैं, उनके साथ यदि आप रिलेट कर पाते हैं, देन योर प्रोफेशनल फिटनेस विल बी मोर। दैट्स व्हाई ये अखंड मंडल समझना, ये मुझे लगता है फिटनेस का मेन पर्पज है। अनलेस यू आर एबल टू रिलेट विथ बियॉन्ड फैमिली, फैमिली के साथ नेचुरल होता है। बृहदारण्यक उपनिषद वेरी ब्यूटीफुली स्टार्ट्स विथ डिस्कशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। याज्ञवल्क्य है, उनकी 2 पत्नियां हैं। याज्ञवल्क्य वनवास में जाते समय अपनी पत्नियों को संपत्ति बांट रहे हैं, आधी आधी संपत्ति बांट दी। जनक से बहुत कुछ मिला है उनको, एक प्रश्न का उत्तर देते तो 1000 सोने से मंडी हुई गाय, ऐसे जनक उनको देते थे। तो याज्ञवल्क्य
के पास बहुत संपत्ति थी। उन्होंने आधी संपत्ति कात्यायनी को दे दी, आधी मैत्रेयी को दे दी। कात्यायनी बेचारी सीधी सादी गृहिणी थी, वो शी वॉज वेरी हैप्पी, मेरे बच्चों का लाइफ सुधर गया, इतनी संपत्ति मिल गई। मैत्रेयी वॉज मोर इंटेलिजेंट। उन्होंने याज्ञवल्क्य को प्रश्न पूछा, तुम इतनी सारी संपत्ति मेरे को देकर के वन में जा रहे हो, इसका मतलब वन में जो तुमको मिलने वाला है वो इससे ज़्यादा वैल्यूएबल होगा, इससे ज़्यादा मूल्यवान होगा, इसलिए वो पाने के लिए तुम ये छोड़ रहे हो। ब्यूटीफुल निगोशिएशंस। आप सब लोग अपने घर में इसका अनुभव कदाचित करते होंगे कि पत्नी की ये जो समझ है वो बृहदारण्यक उपनिषद में भी दिख रही है। वो कह रही बाहर जाके जो पाना चाहते हो वो इससे ज़्यादा वैल्यूएबल होगा, तब तो ये मुझे दे रहे हो। ऐसे नहीं पटा सकते, मैत्रेयी कह रही है याज्ञवल्क्य को, ऐसे आप मुझे नहीं पटा सकते। और भारत की व्यवस्था इतनी अद्भुत है, वानप्रस्थ में जाने के लिए पत्नी यदि वानप्रस्थी बनना चाहती है तो उसको पति की परमिशन लेना जरूरी नहीं है गृहपत्य सूत्र के अनुसार। लेकिन पति यदि वानप्रस्थी बनना चाहता है तो बिना पत्नी की अनुमति से नहीं बन सकता, उसकी चाबी पत्नी के हाथ में है। मैंने तो विवाह किया नहीं इसलिए मुझे पता नहीं, पर आप लोगों के चेहरे की हंसी बता रही थी कि चाबी कहाँ होती है। लेकिन वो मैत्रेयी की चाबी देखिए, मैत्रेयी कह क्या रही है? मैत्रेयी कह रही है वो ज्ञान मुझे दो जो पाने के लिए जा रहे हो, तब मैं आपको अनुमति दूंगी। A very beautiful mantra is there in that Upanishad. इसमें वो कहती है, that is the purpose of life with which we are all working. That is the purpose of life with which the human beings work. कहीं पर भी, दुनिया में कहीं पर भी हो, मनुष्य मात्र इस काम के लिए जी रहा है। अभी 15-20 मिनट हुए इस व्याख्यान को, कंफर्टेबल कुर्सी में आप भी बैठे, मैं भी बैठा हूँ, बढ़िया वातावरण भी अच्छा है, गर्मी भी नहीं है, देयर इज नो डिस्कम्फर्ट। उसके बावजूद आपने कितनी बार अपना आसन बदला? अभी मैंने भी बदला, हाथ यहाँ रखे, फिर ऐसे हो जाएंगे, फिर ऐसे हो जाएंगे, नीचे पैर भी एक दूसरे के ऊपर रखे होंगे। 12-15 मिनट में, आधे घंटे में आप कितने बार आसन बदल देंगे? व्हाई? बिकॉज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग इज, हम कभी भी थोड़े भी डिस्कम्फर्ट में रहना नहीं चाहते। वी वॉन्ट टू गो फ्रॉम डिस्कम्फर्ट टू कंफर्ट। योग शास्त्र में उसके लिए बहुत सुंदर पर्पस बताया। पर्पस ऑफ योग शास्त्र एंड पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज क्लेश तनुकरणार्थे, क्लेश का तनुकरण करने के लिए, टू मिनिमाइज द डिस्कम्फर्ट, टू मिनिमाइज द स्ट्रेस। हम अपने शरीर के स्तर पर बता रहा हूं, मन के स्तर पर, हर स्तर पर आप जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे, पद प्रतिष्ठा, अच्छी पोजीशन के लिए आपने प्रयत्न किए, आप जो जीवन में सब कुछ लगा रहे हैं दाव पे, एक ही बात के लिए लगा रहे हैं, वह है सुख के लिए। और वो सुख का भी बड़ा अद्भुत दूसरा वेद मंत्र है, वो कहता है भूमा वही सह नाल्पे सुखम अस्ति, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विथ अल्पा। छोटे में हमको संतोष नहीं होता। क्यों? क्योंकि भूमा वही सह, क्योंकि अनंत है, वहां आनंद घन अनंत है, इसलिए अनंत के पीछे हम पड़े हुए। इसलिए वो याज्ञवल्क्य को मैत्रेयी बहुत सुंदर प्रश्न पूछ रही है जो इस अखंड मंडल को एकदम क्लियर कर देगा। वो प्रश्न पूछती है, यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, ऐसा मुझे दे करके जाओ जिसको पा लेने के बाद और कुछ पाने की आकांक्षा ही ना बचे। Once you get that, you don't, no hunger remains, you don't need anything else, all the needs are satisfied। ऐसा जो अंतिम आनंद है वो मुझे दीजिए। उसके बाद वो बृहदारण्यक उपनिषद चलता है, लेकिन इतने सुंदर मंत्र है उसमें। वो पति पत्नी से बात कर रहा है ना, तो वो जीवन के अद्भुत सत्यों को भी प्रेम से कह रहा है, सो ब्यूटिफुली डॉक्यूमेंटेड। वो सारे मंत्र ऐसे, नवारे मैत्रेयी पितुकामा, नवारे मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य पत्नी, अरे मैत्रेयी ऐसा नहीं है रे, ऐसा बोल के कह रहे क्या? पितु कामान पितु प्रियो भवति, पति कामान पति प्रियो भवति। वो पिता है इसलिए पिता प्रिय नहीं है, पति है इसलिए पति प्रिय नहीं है, भाता है इसलिए भाई है इसलिए भाई प्रिय नहीं है। फिर अंत में जाकर के उस सब का उत्तर देते हैं, आत्मानस्तु कामान पति प्रियो भवति, आत्मानस्तु कामान पिता। पितु क्यों? अपने पिताजी में मुझे मैं दिखता हूं। आत्मानस्तु कामान, हम सर्वत्र स्वयं को देखते हैं, ये वो अखंड मंडल है। एवरीवेयर वंस यू आर एबल टू सी योरसेल्फ, योर फिटनेस ग्रोज, देन योर फिजिकल फिटनेस विल आल्सो ग्रो, बिकॉज यू विल बी रिलैक्स्ड, योर स्ट्रेस लेवल विल गो, बिकॉज यू आर नॉट
इन एनी ड्यूअलिटी। आप किसी और के साथ अस एंड देम नहीं है। अस एंड देम खत्म होते ही, मैं और वो, ये खत्म होते ही आपका मन बड़ा हो जाता है, मन विशाल हो जाता है। दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ द होल फिटनेस, जो होलिस्टिक फिटनेस की बात है। हर स्तर पे, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो, ये फैमिली तक तो नेचुरली जा रहा है, फैमिली से आगे नहीं जा रहा। हमारा मतलब बचपन से जो हमको संस्कार मिले उसमें मिल सकते हैं अपने अपने परिवारों में, लेकिन वो त्याग आज परिवार से आगे नहीं जा रहा। मतलब वो गुरु तेग बहादुर जी की घटना है कि जिन उनके समय जब कश्मीर से लोग गए और कहा कि आप कोई बड़ा महात्मा बलिदान करेगा तो हम बच जाएंगे, तो पुत्र 12-13 साल का पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी उनको कहते कि पिताजी आपसे बड़ा महान कौन है। नाउ दैट इज गोइंग बियॉन्ड फैमिली। जो त्याग की परंपरा है वो परंपरा हमको, सो फैमिली तक तो हम भरपूर त्याग करते हैं, बच्चों के लिए आप क्या कुछ नहीं करते, लेकिन फैमिली से परे जाना थोड़ा सा कम हो गया है पिछले कुछ वर्षों में, और उस कारण 35 साल के युवा को और डायबिटीज हो रहा है। उसके कारण एक दो तो स्टंट डल ही जाते हैं 50 पार होने से पहले, इधर ब्लॉकेड उधर ब्लॉकेड, थिनर लेना पड़ता है, इकोस्पोरिन नीरोबियोन रोज रोज लेनी पड़ती है। इसका कारण ही है बिकॉज वी आर नॉट एक्सपांडिंग अवर माइंड। अपना मन जो अनंत का विस्तार चाहता है, वी आर ट्राइंग टू मेक इट फाइनाइट। इसलिए जितना स्वार्थी होंगे उतना बीमार होंगे, जितना सेल्फ सेंटर्ड होंगे उतना बीमार होंगे, बिकॉज दैट इज नॉट स्वार्थ एट ऑल। इनफैक्ट वो स्वार्थ है ही नहीं। जब आप दूसरे को छोड़ करके केवल खुद का सोचते हो, वो स्वार्थ नहीं हो सकता। अब्राहम लिंकन जब वकील थे, सबर्ब से जा रहे थे कोर्ट में, तो घोड़ा गाड़ी में जाते थे, बाद में जाके राष्ट्रपति बने। एक दिन घोड़ा गाड़ी, बारिश आई थी, गड्ढे में से घोड़ा गाड़ी गई और एक पिगलेट के, एक सुअर के बच्चे की रोने की आवाज आई। तो वो मिट्टी में फंसा हुआ होगा और उसके ऊपर से घोड़ा गाड़ी चलेगी। इन्होंने गाड़ीवान को, कोचवान को रोका और कहा बाहर उतरे, और उतर करके उस सुअर के पिगलेट को निकाल करके उसको उस कीचड़ में से फ्री किया। वो भाग करके चला गया। इन द प्रोसेस इनके कफ थोड़े मड़ी हो गए, साफ करने के लिए जगह नहीं थी, पानी नहीं था, रुमाल से साफ करके बैठ गए। और बाद में दिन में बार के कैंटीन में, जब दिन में लंच ब्रेक था, तब कुछ लोग जो इनके साथ गाड़ी में शेयर करके जा रहे थे, वो बाकी लोगों को हंस हंस के बता रहे थे, यू नो अब्राहम लिंकन लव्स पिग्स लाइक एनीथिंग। अब्राहम लिंकन को सुअर बड़े प्रिय है, और कह के उनका वर्णन कर रहे थे कि सुअर के बच्चे के लिए खुद के कपड़े खराब कर लिए। ही मडीड हिज शर्ट फॉर अ पिगलेट, ऐसे करके कमेंट हो रहे थे बाजू के टेबल से। अब्राहम लिंकन खड़े होकर के उसके पास गए और उसको जाकर के हाथ लगा करके, यू आर रॉन्ग माई फ्रेंड, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, यू कैन से एनीथिंग टू मी, पर योर कंक्लूजन इज रॉन्ग। उसने कहा क्यों, आपने बचाया नहीं सुअर, उसके बच्चे को, सुअर के बच्चे को? मैंने बिल्कुल बचाया, लेकिन इसलिए नहीं बचाया कि उस सुअर के बच्चे से मुझे प्रेम था। मैंने सुअर को इसलिए बचाया क्योंकि मुझे मेरी रात की नींद प्यारी थी। उसका वो चिल्लाना मुझे रात को सोने नहीं देता, और मैंने कुछ नहीं किया और वो चिल्लाता रहा, तो मैं रात को सो नहीं पाता। So that is the enlightened self we are talking about. When you don't think about others and think only about your clothes not getting dirty, तो आप सही अर्थ में स्वार्थी है ही नहीं। वास्तविकता में you are creating a lot of stress within yourself. इसलिए मैंने इस अखंड मंडल के चित्र को आपके सामने बताया। ये काम कैसे करता है, ये भी एक बहुत सुंदर। ये धर्म चक्र शब्द सुन के कुछ मन में चक्कर आ जाता है कभी कभी, पर धर्म इज नॉट रिलीजन। संस्कृत में धर्म शब्द इसलिए नीचे ड्यूटी शब्द प्रयोग किया है। इन संस्कृत धर्म मीन्स ड्यूटी। शिक्षक का धर्म, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजन देयर। पिता और पुत्र का रिलीजन तो एक ही होगा, पर पिता का धर्म अलग है, पुत्र का धर्म अलग है। वी आर टॉकिंग अबाउट द ड्यूटी। सो धर्म चक्र जब बता रहे तब ये ड्यूटी की बात हो रही है। ये दिस इज प्रोफेशनल फिटनेस ऑल्सो एंड एनकम्पासेस टू द हाईएस्ट स्पिरिचुअल फिटनेस ऑल्सो। बड़ी इकाई में से, जिसको टेक्निकल टर्म में समष्टि कहते हैं, कलेक्टिव में से इंडिविजुअल का जन्म होता है। जैसे परिवार में से अपना जन्म हुआ, समाज में से परिवार का जन्म हुआ, राष्ट्र में से समाज का जन्म हुआ, और लाइक दैट बड़ी एंटिटी में से छोटी एंटिटी का जन्म होता है। उसका आपसी संबंध भी अखंड मंडलाकार है।
कैसे? बड़ी इकाई छोटी इकाई के योगक्षेम का पालन करती है। इट टेक्स केयर ऑफ द अपब्रिंगिंग। माता पिता परिवार ने हमारा लालन पालन किया, समाज ने किया, राष्ट्र ने किया, हम सब लोग आज जो कुछ भी है कितने लोगों की देन से है, और उसके कारण हम कैपेबल बने, हमारी कैपेसिटीज का विकास हुआ, हमारे अंदर क्षमताएं विकसित हुई, और जब हमारे अंदर क्षमताएं विकसित हुई तो हमने समाज को कर्म दिया, समाज से योगक्षेम मिला, हमने समाज को कर्म वापस दिया, तो उस कर्म का हमको कर्मफल मिला 7th पे कमीशन के रूप में। तो अब हमारे ऊपर कर्जा हो गया, योगक्षेम के बदले में कर्म दिया तो कर्म, या कर्म के बदले में कर्मफल मिल गया तो योगक्षेम का कर्जा बचा नहीं गया। उस कर्जे को चुकाने के लिए, ऋण से उऋण होने के लिए जो हम काम करते हैं, गाय को रोटी खिलाते या कुत्ते को रोटी खिलाते या जो भी काम ऐसा करते हैं कि जिस काम में हम प्रतिफल की अपेक्षा नहीं करते, वो निष्काम भाव से किए गए कर्म को यज्ञ कहते हैं। ये दायित्व बोध है। आप रात को सोने से पहले यदि अपने आप को ये पूछेंगे कि जितना मैंने पाया उससे कम दिया या ज्यादा दिया, तो आपके सारे संबंध और आपका सारा फिटनेस ठीक होगा। यस, इसलिए ये जब होता है समाज में जब यज्ञ जीवित होता है तब उस समय समाज पोषित होते रहता है। जब यज्ञ समाप्त हो जाता है तो फिर सोशल सिक्योरिटीज सरकार को देखनी पड़ती है, और अमेरिका जैसे $14 ट्रिलियन की इकोनॉमी को, $21 ट्रिलियन इकोनॉमी को, आज $21 ट्रिलियन इकोनॉमी है अमेरिका की, उस $21 ट्रिलियन इकोनॉमी की नेशनल डेट $28 ट्रिलियन है। एक 122% ऑफ द GDP अमेरिका का कर्जा है, नेशनल कर्जा है। वाई? बिकॉज 38% ऑफ द बजट इट हैज टू स्पेंड ऑन सोशल सिक्योरिटीज, फूड टिकट्स, सीनियर सिटीजन को मदद करने के लिए। वाई? बिकॉज सोसाइटी हैज कोलैप्स्ड। Because 46% of the Americans do not know who their father is. Fatherless America, डेविड ब्लैंकेनॉट की किताब है। उन्होंने पूरा सर्वे करके बताया कि सिंगल पेरेंट और सिंगल पेरेंट में भी मदर्स ओनली, ये स्थिति अमेरिका की विकट होगी। उस कारण से धर्मचक्र समाप्त होगा, ये ड्यूटी समाप्त हो गई, क्योंकि सेल्फलेसनेस से काम करना समाप्त हो गया। भारत ये करता रहा सदियों से, इसलिए भारत की स्थिति ये रही कि भारत ने सदियों से, भारत की जो इकोनॉमी है वह इकोनॉमी वर्ल्ड को कंट्रीब्यूट करने वाली इकोनॉमी रही। इसने कंट्रीब्यूट किया वर्ल्ड को। ठीक है, मेरे कांटेक्ट ही थे, वो नहीं भी होंगे तो चलेंगे। और इसलिए एंगस मेडिसन की किताब बताती है कि भारत यह विश्व के 46% ऑफ द GDP कंट्रीब्यूट करता रहा टिल द 14th सेंचुरी। इसलिए ये भारत की ताकत रही। ये हमारी होलिस्टिक फिटनेस का कंसेप्ट है। यू कैन गो टू द लास्ट स्लाइड, उसके बाद प्ले कर सकते हैं। दैट्स ऑल। इसलिए हमको बियॉन्ड बॉडी भी फिटनेस की बात जो है वो इस कर्तव्य बोध से, जस्ट इससे पहले कि ये एंगस मेडिसिन का चार्ट है, जस्ट वन वीक इससे जाएगी ना, ठीक है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड मिलेनियर पर्सपेक्टिव एंगस मेडिसन की किताबें 2004 में छपी थी, जिसमें उसने वर्ल्ड GDP का फ्रॉम 0 to 2000 उन्होंने पूरा बताया। उसमें भारत का हिस्सा जो बीच वाला है, नीचे ब्राउन वाला चाइना का है, पीच कलर जो है वो भारत का हिस्सा है। टिल 14th सेंचुरी 1500 तक आप देख सकते हैं 46% ऑफ द GDP भारत यदि कंट्रीब्यूट करता था। आज हम $5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं इकोनॉमी की। वो यदि करना है तो हमको उस धर्मचक्र को फिर से स्थापित करना पड़ेगा अपने जीवन में। ड्यूटी फर्स्ट, ये काम करना पड़ेगा। क्वेश्चन आंसर के लिए मैंने समय छोड़ा नहीं, क्षमा करें। Well, sir, the concepts which you have explained would take more than 45 minutes or maybe 45 years to understand that in this era of constant running, wherein we are facing problems of health, sanity and stability of mind, we have to train our minds to control our bodies. We have to understand that concept of health is much larger than we understand it than what we understand it in the narrow sense. Thank you for explaining the concepts of Akhand Mandal Jeevan Drishti, where the merger of individual being with the ultimate through various stages takes place,
and we have not graduated beyond our families most of the time. We are also thankful to you for making us understand the duty cycle of life. Sir, on behalf of Phase 4 participants and the Academy, I would like to present a token of affection on my side to you. Thank you very much, sir.